انسان کا بڑا قدیم دوست ہے۔ ایک درخت کم و بیش 20 بچوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ یہ درخت آپ کا ایسا دوست ہے کہ وہ تمام فاسد ہوائیں جذب کر لیتا ہے اور اس کے بعد صحت مند آکسیجن آپ کے لیے فراہم کرتا ہے، آپ کے لیے خوشبوئیں فراہم کرتا ہے، آپ کے لیے پھل فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی جنگلات 4 یا 5% ہیں کل رقبے کے۔ گورنمنٹ کی جگہیں اب مزید نہیں مل سکتی، تو ایسے میں ضرور ہے کہ معاشرہ جہاں بھی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے صحن میں، اپنے کھیت، اپنے کھلیان میں درخت لگائے، درخت اگائے، درختوں کی حفاظت کرے۔ درخت ننھے بچوں کی طرح ہوتے ہیں جی، یہ نہیں کہ شجرکاری کے دنوں میں درخت لگا دیا اس کے بعد اسے اردو کے روایتی محبوب کی طرح بھول گئے۔ جب تک درخت کی جڑیں زمین سے خود اپنا رزق کشید کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اس وقت تک درخت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، اسے وقت پر پانی دینا پڑتا ہے، کھاد فراہم کرنی پڑتی ہے، موسموں کے شدائد سے بچانا پڑتا ہے۔ یوں جنگلی جانوروں سے بھی اس کی حفاظت ضرور ہے، اور جب وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بے نیاز ہو کر آپ کی مدد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کوشش کیجئے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کریں۔ درخت زمین کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے قدیمی دوست ہیں۔ ایسا نہ کیجئے گا، محشر بدایونی نے جس کا حوالہ کچھ یوں دیا ہے کہ سایہ طلب گئے جدھر، بول اٹھے وہیں شجر، آئے ہو اب مسافرو جب ہمیں دھوپ کھا گئی۔ تو درختوں کو دھوپ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ یامہا موٹر سائیکل بنانے والوں کی طرف سے ایک فرمائش ہے، میرے حال کا سب سے معمر جوڑا۔ یہ شادی کب ہوئی تھی؟ کیڑے سن ہوئی سی؟ سن جب رولے پائے نا، رولے وہ سال بعد پیچھے آئی۔ کیڑے رولے پاکستان بنن دے؟ جب پاکستان دے ہندوستان بنا۔ اچھا، ہاں تے اس تو سال بعد؟ ہاں سال بعد۔ اچھا، تے ادو دوستاں نے کیڑا گانا گایا سی تہاڈی شادی تے؟ سانو یہ کی پتا، ادو پنڈا تھاواں جاندے ہن کیڑا گانا سی کیڑا نہیں سی گانا، ادو گانے بجانے کدو ہن۔ آؤ بیٹھو جی۔ لو جی، یامہا موٹر سائیکل کے تو مہمان 2 آ گئے، اب آگے چلتے ہیں جی۔ اسپارکل ٹو گڈ آپ سے فرمائش کرتے ہیں، کسی کے پاس چھتری ہو؟ فرمائش آپ نے پوری کی اسپارکل کے مہمانوں کی فہرست میں۔ اسپارکل پوچھتے ہیں کسی کے پاس پنکھا ہو؟ یامہا موٹر سائیکل بنانے والوں کی طرف سے بزرگوں، یہ آپ کے لیے تھوڑے لئی جی، یہ آپ کے لیے اسپارکل کی طرف سے، یہ آپ کے لیے، بسم اللہ۔ آؤ سرکار۔ جی خواتین حضرات، ہمارا ایک شعبہ ہے فیملی کوئز کا۔ آج فیملی کوئز کے لیے 2 خاندانوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ محمد صفدر اور اہل خانہ تشریف لے آئیں، اور وجاہت علی اور اہل خانہ۔ محمد صفدر اور اہل خانہ، آپ ہمارے مہمان بنتے ہیں صوفی بناسپتی اور کوکنگ آئل بنانے والوں کے۔ صوفی اپنا پیغام۔
को शुरू होने वाली मजदूरों की तहरीक का बुनियादी मुतालबा क्या था? हर मजदूर 8 घंटे काम करे। उससे पहले मजदूरों के ड्यूटी के जो घंटे थे वो मुतय्यन नहीं थे। किसी से 16 घंटे काम लिया जाता था, 18 घंटे काम लिया जाता था। जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी थी। तो मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने मुतालबात रखे और कहा कि 8 घंटे हर मजदूर काम करेगा। ये मजदूर तहरीक कामयाब हुई और यूं मजदूरों से वो एक बहुत बड़ी गुलामी का जो अंदाज था वो खत्म हुआ। जवाब दुरुस्त है जी। सूफी की टीम ये बताए कि दरियाए सिंध किस मकाम पर मैदानी इलाके में दाखिल होता है? कालाबाग के मकाम पर। कालाबाग के मकाम पर। जवाब दुरुस्त है जी। नेशनल अचार की टीम बताएगी कि कुर्बानी और जिहाद का हुक्म कब नाजिल हुआ? कुर्बानी और जिहाद 2 हिजरी में। सवाल आया है कि अपना पेशावर से कराची तक का कितना फासला है? 1350 मील। आपने फरमाया 1350 मील। ये 1043 मील है जी। एक गलती हुई जी। आपसे पूछना है कि कितने ईसवी साल के बाद एक हिजरी साल का इजाफा हो जाता है? 400। सुन लें, 33 साल के बाद, 33 ईसवी साल के बाद एक हिजरी साल का इजाफा हो जाता है जी। जनाब, आपसे सवाल आया है कि 86,400 सेकंड्स को साइंसी जबान में क्या कहते हैं? एक दिन। एक दिन। एक दिन। जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान की कदीम तरीन रेजिमेंट का नाम क्या है? पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट कदीम तरीन रेजिमेंट है। जवाब दुरुस्त है जी। सूफी की टीम बताए कि इंसान की आंखें मरने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहती हैं उन्हें अगर निकाल कर महफूज कर दिया जाए? 2 या 3 घंटे। 2 या 3 घंटे? नहीं जी, इंसानी आंख उसके इंतकाल के बाद तकरीबन 30 मिनट तक जिंदा रहती हैं। इस दौरान अगर उन्हें निकाल लिया जाए, वो जो आई बैंक हैं वहां पहुंचा दिया जाए, तो वो किसी और की दुनिया रोशन हो सकती है। सवाल यह है नेशनल अचार की टीम के दुनिया के किस वाहिद बर्रे आजम के हर मुल्क के पास बंदरगाह मौजूद है? अफ्रीका। नहीं जी, शिमाली अमेरिका, इसके हर मुल्क के पास अपनी बंदरगाह मौजूद है जी। गलती हुई जी। डॉक्टर ने कहा कि आप सिर्फ व्हाइट मीट इस्तेमाल करें, तो आप क्या खाएंगे? सर, मुर्गी और मछली। क्या खुशी से जवाब दे रहे हैं, मुर्गी और मछली। जवाब दुरुस्त है जी। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? चांदी। सोना मुसलमान मर्द के लिए पहनना हराम है, लिहाजा वो अंगूठी जो मोहरे नबूवत जिसमें थी वो चांदी की बनी हुई थी। जवाब दुरुस्त है जी। अगर पार्लियामेंट के किसी रुकन की अहलियत के बारे में इख्तिलाफात पैदा हो जाएं, तो फैसला कौन करता है जी? स्पीकर। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये फैसला वो देता है कि इसकी अहलियत अब है या नहीं है। गलती हुई जी। सवाल यह है नेशनल अचार की टीम के रियासत जम्मू और कश्मीर के पहले मुसलमान बादशाह का नाम क्या था? कभी मुसलमान बादशाह ने था कदरुद्दीन, जिनका पुराना नाम रंचन शाह था और वो बुद्ध मजहब के थे। उन्होंने बुद्ध मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया और यूं जम्मू और कश्मीर के वो पहले मुसलमान बादशाह बने और उनका नाम सदरुद्दीन रखा गया। तो यूं जम्मू और कश्मीर का पहला मुसलमान बादशाह सदरुद्दीन था। 3 गलतियां। बहरहाल तो फिर फैसला तो कुछ ना हुआ।
तो ऐसा है कि जीत के जो मेरे पास 4 लिफाफे हैं, पिछली बार भी शायद यही हुआ कि टीमें बराबर रहीं। नेशनल अचार बनाने वालों की तरफ ये 2 लिफाफे और सूफी, बनास्पति और कुकिंग ऑयल के लिए ये 2 लिफाफे। जी, दोस्तों के लिए किसान घी बनाने वालों ने तोहफे भेजे हैं। किसान अपना पैगाम देते हैं। किसान घी, दूध से हासिल करदा खालिस देसी किसान घी, कुदरती तौर पर विटामिन ए और डी से भरपूर, आपका आजमूदा खुद जायका कुदरती खुशबू के साथ अब नई पैकिंग में आपके करीबी स्टोर से दस्तयाब। की टू हेल्थ, कम टू द नेचुरल। किसान घी की तरफ से सवाल है, ज़हनों को हाजिर कीजिए। पाकिस्तान रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया में कौन से वे नंबर पर है? सुन लीजिए जी, रकबे के एतबार से पाकिस्तान 34वें नंबर पर है, 30+4, और आबादी के एतबार से 8वें नंबर पर है। तशरीफ लाएं किसान के मेहमान। ये बताएं कि 1948 में किन किन मुल्कों में टेलीविजन काम कर रहा था? सुन लें, बरतानिया, रूस, अमेरिका और फ्रांस। 1948 में इन मुल्कों में टेलीविजन काम कर रहा था। किसान घी के मेहमान, सवाल यह है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहिब मुसद्दस हाली उर्दू के किस अजीम शायर के शागिर्द थे? गालिब के। असदुल्ला खान गालिब के। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। किसान घी की तरफ से तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए कैश और किताब के तोहफे हाजिर हैं, कबूल कीजिए। जी, दोस्तों के लिए विगोरीन का तोहफा। विगोरीन, बच्चा सेहतमंद, माशा सेहतमंद। नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत और तवानाई के लिए विगोरीन चिल्ड्रन सिरप, BMA फार्मा उकाड़ा का विगोरीन सिरप। बुढ़ापे में इंसान की नब्ज की रफ्तार कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? बुढ़ापे में इंसानी नब्ज की रफ्तार कम हो जाती है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। विगोरीन का तोहफा जी। नए शादीशुदा जोड़ों के लिए तोहफे भेजे हैं नेशनल हॉट एंड स्पाइसी केचप ने। जी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सुन लें कि इन तोहफों की कीमत जो आपके लिए नेशनल हॉट एंड स्पाइसी ने भेजे हैं 1 से लेकर 15 तक है। जो आपके जी में आता है लिख लें। आप मशवरा दे सकते हैं। मैं 5 गिनता हूं। नेशनल हॉट एंड स्पाइसी 1, 2, 3, 4 और 5। क्या कीमत होगी? 4, 5 वाले, 6 वाले, 6 वाले। जी, अब कुछ वक्त मौसीकी के लिए। आज हमें मौसीकी के लिए ताउन हासिल है सिटीजन घड़ियां बनाने वालों का। सिटीजन अपना पैगाम देते हैं। सिटीजन एको ड्राइव, सिटीजन के नए मॉडल के इंतखाब के लिए तशरीफ लाइए एक्सेलशियर वॉच कंपनी के शोरूम, शहजादा चैम्बर, दी माल, लाहौर। हमारी आज की मेहमान गुलकारा हैं, आपका जाना पहचाना नाम
फरीहा परवेज। آپ ہماری مہمان ہیں سٹیزن گھڑیاں بنانے والوں کی. انہوں نے آپ کے لیے ایک خوبصورت گھڑی بھیجی ہے اور اتفاق ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اس وقت گھڑی نہیں ہے. آپ اتار آئے اسے بات کیجیے گا.
जी खतों के जवाब के लिए आज हमें ताउन हासिल है नेशनल रिफाइंड सॉल्ट का। खतों के जवाब के लिए ही बर्ग स्नोफॉल प्रिकली हीट पाउडर का ताउन हासिल है। बर्ग अपनी बात कुछ यूं आप तक पहुंचाते हैं। बर्ग स्नोफॉल प्रिकली हीट पाउडर, बर्फ जैसी ठंडक के साथ ऐसी ठंडक जिससे आप रहे हर लम्हा पुरसुकून। बर्ग स्नोफॉल प्रिकली हीट पाउडर। जी नेशनल रिफाइंड सॉल्ट की तरफ से पहला खत। ये शारजा से ख्वाजा अलमास काश्मीरी लिखते हैं, मोहतरम तारिक अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बैतबाजी का सिलसिला बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ परदेश में शेर व शायरी की किताबें तो मिलती नहीं, इसलिए आपका प्रोग्राम देखकर अब भी ज़ौक़ की तस्कीन हो जाती है। क्या ये मुमकिन है कि आप तालिब इल्मों के दरमियान कश्मीर के बारे में क्विज़ का कोई मुकाबला करवाएं? इससे मालूमात भी होंगी और मसला कश्मीर भी जिंदा रहेगा। अगर आप चाहें तो मैं इस मुकाबले के लिए खासा बड़ा इनाम भेज सकता हूँ। शारजा से अलमास काश्मीरी, आपके खत का शुक्रिया। बैतबाजी की पसंदीदगी का शुक्रिया। ये भी सच है कि परदेश में यूं शेर व अदब की किताब में उस फरावानी से नहीं मिलती जितनी वतन अजीज में दस्तयाब हैं। कश्मीर से आपकी मोहब्बत, कश्मीर से हर पाकिस्तानी की मोहब्बत, कश्मीर से हर मुसलमान की मोहब्बत जो है वो अटूट है। और मैं कोशिश करूंगा, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं कश्मीर पर क्विज ना भी करवा सका तो आप यकीन जानें कि कश्मीर हर पाकिस्तानी के दिल पर लिखा हुआ है। और जब तक वहां इंसाफ नहीं होता, जब तक वहां कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पूरा पाकिस्तान और दुनिया में हर जगह का मुसलमान इंशाअल्लाह कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती मदद करता रहेगा। आपके खत लिखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरा खत जी, ये डॉक्टर नुसरत फातिमा MA PhD हरीपुर हजारा से। जनाब तारिक अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपको हमेशा अपनी अमान में रखे। मैं शायद जिंदगी में पहली बार किसी गैर महरम को खत लिख रही हूँ। आप गैर महरम होते हुए भी अपने अपने से लगते हैं। हमारा घराना एक इल्मी और मजहबी घराना है, इस पर हमें फख्र है। जुमेरात की शाम हम सब घर वाले इकट्ठे बैठकर आपका प्रोग्राम देखते हैं। मेरे दादा अबू आपको बहुत पसंद करते हैं। उनका पैगाम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीनी सवाल पूछा करें, अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करें, सीरत मुबारक की बातें बताया करें। डॉक्टर नुसरत फातिमा MA PhD हरीपुर हजारा। डॉक्टर नुसरत साहिबा, इस खत का और इस हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। एक खास अंदाज में और एक खास तरीके से मैं पाकिस्तान और इस्लाम जो हमारा दीन है और रहती दुनिया तक के इंसान के लिए फलाह की राह है, मैं बातें करता रहता हूं। कभी ढकी छुपी होती हैं, कभी खुली खुली होती हैं। और आप सब इकट्ठे बैठकर प्रोग्राम देखते हैं, बस यही मेरी कामयाबी है। इस प्रोग्राम की कामयाबी है कि ये फैमिली प्रोग्राम है और इसको दादा, पोता, बाप, बेटी, बहन, माँ सब इकट्ठे बैठकर देख सकते हैं। और इस यकीन के साथ कि इसमें कोई लम्हा ऐसा नहीं आएगा जहां एक दूसरे से शर्मिंदगी का कोई एहसास हो। बाकी मैं जितने आपने मशवरे दिए हैं इन पर बातें करता रहता हूं, इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। उकाड़ा से कमालुद्दीन खान साहब लिखते हैं, तारिक अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि बेघर लोगों को घर फराहम करने के लिए वजीर आजम की कोई स्कीम आ रही है। क्या वाकई ये स्कीम गरीबों के लिए है या गरीबों के नाम पर फिर बड़े लोग ही लूट मार करके ये घर भी ले जाएंगे? खत कमालुद्दीन, आपने अपने तजुर्बे के तहत ठीक लिखा है कि इस मुल्क में गरीबों के नाम को सामने रखकर माजी में लूट मार की जो दास्तानें मंजर आम पर आई हैं उनको दोहराने का फायदा नहीं है और गरीबों के नाम पर ही लूटा गया। आपने अपने तजुर्बे के तहत सही लिखा है, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि 2.5 बरस गुजर गए हैं इस नई हुकूमत को।
2.5 बरस में इन्होंने गरीबों के लिए खासे काम किए हैं, अगरचे उतना नहीं कर सके जितना होना चाहिए था, इसलिए कि वसाइल महदूद हैं। अब ये लाखों घर गरीब लोगों के बनाने की स्कीम सामने आई है। मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये घर उन्हीं बेछत लोगों को मिलेंगे जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। और जब ये घर, अभी तो तामीर कागजों में नक्शे बन रहे हैं, जब ये घर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आंख खुली रखेगी। अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो हम जैसे दरवेश मौजूद हैं, आप फिक्र मकाबा। जमाल अफगानी इस्लामाबाद से लिखते हैं, तारिक अजीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आपसे फरमाइश करता हूं कि आप हमें अफगानी गुलकारा का नगमा सुनाएं, यानी एक नगमा से नगमा सुनवा दें, बहुत मेहरबानी होगी। जमाल अफगानी इस्लामाबाद। जमाल अफगानी का इशारा गालिबन वो हमारी अफगानी आर्टिस्ट हैं, नगमा, जो 2 दफा प्रोग्राम में आई हैं। पिछली बार उन्होंने कलाम इकबाल और एक पश्तो नगमा सुनाया था। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जमाल अफगानी की ये फरमाइश पूरी कर दें। सूरत न परस्तम मन बुत खाना शिकस्तम मन, सूरत न परस्तम मन बुत खाना शिकस्तम मन, on sale to book sairam, on sale to book sairam, har band sustam man, सूरत न परस्तम मन बुत खाना शिकस्तम मन, सूरत न परस्तम मन बुत खाना शिकस्तम मन। आप चारों मेहमान हैं नेशनल रिफाइंड सॉल्ट की, उन्होंने आपके लिए तोहफे भेज रखे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। और बर्ग स्नो फॉल प्रिकली हीट पाउडर की तरफ से खतों के जवाब आप तक पहुंच चुके। दोस्तों के लिए तोहफे भेजे हैं सूफी सोप सवैयां बनाने वालों ने। सूफी अपना पैगाम देते हैं। सूफी सोप सवैयां नीम और लीको के साथ वॉशिंग मशीन के लिए कम खर्च और उजली धुलाई। सूफी सोप सवैयां तमाम पाउडरों और साबुनों से बेहतर। जी, सूफी सोप की तरफ से सवाल है कि 1901 में दुनिया के किस मशहूर इनाम का आगाज हुआ था? नोबेल प्राइज। जवाब दुरुस्त है। सूफी सोप के मेहमान अल्लामा इकबाल के तारीखी खुतबे 1930 में किस शायर को कलाम पढ़ने की दावत दी गई थी? अबुल असर हफीज जालिंद्री। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। वो कौन सी आबशार है जी जिसे मुख्तसर तरीन सरहदी खत भी समझा जाता है? नियाग्रा फॉल। तशरीफ लाएं। सूफी सोप सवैयां ने तीनों मेहमानों के लिए तोहफे भेजे हैं, कबूल कीजिए जी। ख़वातीन हज़रात, अब मेरी एक मेहमान तशरीफ ला रही हैं। ये मेहमान हैं स्पार्कल टू गुड की। स्पार्कल अपना पैगाम देते हैं। लार्ज साइज टूथपेस्ट अब सिर्फ 4 रुपए में। स्पार्कल टू गुड बचत पैक, 1 टूथब्रश और 2 टूथपेस्ट सिर्फ 38 रुपए में। क्यों? क्वालिटी और बचत में है कोई हमसा? स्पार्कल टू गुड बचत पैक, द रियल चैम्प। मेरी ये मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने। क्या आप अपना तारुफ हवा बहार की है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा, नाम शुरू होता है रे से। कौन है? रीमा। जी रीमा, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे शब रोज गुजर रहे हैं आपके? जी बस वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब। और मुझे तो लगता है कि जैसे ये मेरा अपना प्रोग्राम है और बहुत ऑनर फील करती हूँ मैं तारिक अजीज शो में आकर। तो शब रोज वही शूटिंग्स और काम, शूटिंग और शूटिंग और शूटिंग जी, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क जी। अच्छा, आजकल
आपकी कौन सी फिल्म कोई ऐसी आ रही जिसे लोग शौक से देखने जाएं? मेरी फिल्म अल्ताफ हुसैन साहब की है एक पागल सी लड़की। एक पागल सी लड़की? जी। वो उन्होंने आप पर ही बना दी फिल्म? जी। अच्छा। तो वो बड़ी एक अच्छी फिल्म है और उसमें एक काफी डिफरेंट किस्म का रोल है, तो मैं समझती हूँ कि वो परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरी बहुत मुनफरिद फिल्म है। अच्छा, ये बताएं रीमा कि फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों की आमद भी है या अभी तक वही दो चार चेहरे हैं? नहीं, मौका दिया जाता है, अब डिपेंड करता है नए चेहरों के टैलेंट पर कि वो कितना अपने आप को नुमाया करते हैं या मनवाते हैं काम में या इस फील्ड में, तो मौका तो काफी आर्टिस्टों को दिया जा रहा है। लेकिन सबकी किस्मत आप जैसी नहीं कि पहली फिल्म में ही आए और यूं करके निकल गए। मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है और आवाम का प्यार है। ये तो ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों मुल्क से बाहर भी आप गए? जी, मैं अमेरिका गई थी। शूटिंग के लिए? नहीं, एक सैटेलाइट चैनल में रिकॉर्डिंग थी। अच्छा। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं गई थी। अच्छा, ये मेरा जाती तौर पर तो मैं इल्म नहीं रखता इस बात का, लेकिन अखबारात से कुछ बातें पहुंची, तो अगर आप इजाजत दें तो उन पर बात हो जाए थोड़ी सी। जी जरूर। अच्छा। सच को कोई आंच नहीं होती है। तो ये था कि बाज दफा वैसे तो आर्टिस्ट जोग्राफियाई हदूदों कयूद से मावरा होता है, बड़ा शायर, बड़ा अदीब, बड़ा अदाकार, बड़ा पेंटर, लेकिन फिर भी जब वो अपने फाइनल तज्जिए में उसको आप देखते हैं, आखिरी तज्जिए में, तो वो किसी न किसी एक बाग का फूल होता है जहां से उसकी खुशबू जाती है। तो अगर कभी उस बाग पर कोई जद आए तो वो खुशबू उस तरफ जाने से गुरेजा रहती है कि मुझे इधर नहीं जाना चाहिए। मेरा इशारा आप समझ रही हैं? जी बिल्कुल। अगर तो पिछले दिनों हमारा हिंदुस्तान के साथ तजाद कश्मीर की वजह से, वैसे ही हमेशा से ही हम तने हुए रहते हैं, हसास रहते हैं, एक जरा तेज हवा आई तो ये साज झंझना उठते हैं। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि सकाफती एतबार से आपको वहां जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, और अगर गए थे तो वहां क्या किया? अखबारों ने ठीक लिखा या आपसे गलती हुई? आज खुलकर बात होगी, मैं एक साफ आदमी हूं। कि जैसे आपने कहा, एक बाग जो होता है, फूल जो होता है वो अपने बाग का होता है और अपनी खुशबू फैलाता है, तो मैं दूसरे ममालिक में जाकर अपने ही वतन की खुशबू को फैला रही थी, अपने कल्चर को प्रमोट कर रही थी। और मैं समझती हूँ कि मैं किसी जगह पर भी जाऊँ तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने मुल्क की डिग्निटी, अपने मुल्क की ग्रेस और अपने मुल्क की रिस्पेक्ट का ख्याल रखूं। मुझसे जो बात मंसूब की गई वो ऐसी बात थी जो मैं सुनने का तसव्वुर नहीं कर सकती एज ए पाकिस्तानी एक्ट्रेस, एज ए पाकिस्तानी ह्यूमन बीइंग, वो मैं कहने का तसव्वुर कैसे कर सकती हूँ। तो ये अखबारात ने ऐसे ही लिख दिया? जी, मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इनके कि खुदा उनको सही रास्ता दिखाए। जब ये प्रोग्राम ऑन एयर आएगा, आपके साथ पूरे मुल्क की आवाम, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, इस प्रोग्राम में मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे यकीन है कि वो मुझ पर फख्र करेंगे। वहां क्या किया क्या आपने जो इतना शोर इन्होंने मचाया? म्यूजिकल प्रोग्राम था और उसमें पाकिस्तानी और इंडियन गाने थे और गेस करना था कि कौन सा पाकिस्तानी गाना है, और 3 टीम पे ये प्रोग्राम मुंसलिक था। और मुझे भी मौका मिला और मैंने ज्यादातर जो है पाकिस्तानी गाने मैंने ही बूझे, बल्कि मुझे बड़ा फख्र है कि एक गाना मैंने बूझा तो वहाँ जितनी भी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बैठी थी तो उन्होंने कहा कि रीमा ने गलत गाना गाया है, ये इंडियन गाना है। अच्छा। तो जो वहाँ के होस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, रीमा ने सही गाना गाया है, पाकिस्तानी गाना पहले बना था, इंडिया ने इसकी कॉपी की थी। कॉपी न कहें, कॉपी तो बड़ा मुहज्जब लफ्ज़ है, इंडिया ने चोरी की कहें, सीधी बात कहें। मैंने उनके मुंह से कहलवा दिया, ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। और तारिक साहब, इतना कहना चाहूंगी, जबकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन उस वक्त वहाँ रीमा नहीं थी, वहाँ एक पाकिस्तानी लड़की थी, और उस वक्त जो मेरे जज्बात थे वो एज ए एक्ट्रेस नहीं थे, एज ए पाकिस्तानी ह्यूमन बीइंग थे। मैंने आबदा जी का सूफियाना कलाम गाया,
माही यार दी घड़ोली भर दी, कल्ला कुलू मैं डर दी, मौला कुलू मैं डर दी। और उस वक्त जो मेरा आलम था वो मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी परफॉर्मेंस से आपको पता चलेगा कि मैं कितने दिल से और कितने जज्बाती अंदाज में गा रही थी। और स्पेशली ये गाना दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, मुझे सुर नहीं आ रहे मगर मैं बस गाए जा रही हूँ, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और मेरे साथ सारी कम्युनिटी ने वहाँ गाया। और मेरी इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे बड़ा, मैं फखरिया तौर पे कह रही हूँ कि जितने वहाँ पाकिस्तानी बैठे थे उन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान, वी लव रीमा। और उसके बाद तो हम भी तो यही कहते हैं, हम तो इससे अलहदा बात थोड़ी कहते हैं। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि जब वो आप प्रोग्राम देखेंगे, हम क्यों वो प्रोग्राम देखने जाएं? आप भी यहाँ मौजूद हैं, साज भी मौजूद है। महिया से खड़ोली भर दी, महियार दी खड़ोली भर दी, सुन यार दी खड़ोली भर दी, एक अल्लाह कुलू में डर दी, एक मौला कुलू में डर दी। हाँ महियार दी खड़ोली, महियार दी खड़ोली भर दी, सुन यार दी खड़ोली भर दी, एक अल्लाह कुलू में डर दी, एक मौला कुलू में डर दी। हाँ महियार दी खड़ोली, हा 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 हा, सुन यार दी खड़ोली भर दी। चलिए, ये हमें सच्ची बात है, थोड़ा सा दुख था, लेकिन क्योंकि हम आपसे ये तवक्को नहीं रखते थे। आपने बता दिया है कि असल सूरत आपके हाल क्या प्रोग्राम के थी। जरिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि इस तरह की अफवाहें जो फैलाते हैं उनका कोई सदेबाब जरूर होना चाहिए, कि जो आर्टिस्टों का इमेज इस तरह खराब करने की कोशिश करते हैं, बस आप उनसे बोला ही न करें। अच्छा, टेलीविजन की तरफ अब बहुत से दोस्त तैयारियां कर रहे हैं। अपने नदीम ने भी, मैंने अखबार में पढ़ा कि वो भी टेलीविजन के लिए कोई सीरियल में काम कर रहे हैं। आपका अब कोई इरादा बना या अभी भी मैं जब वक्त मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा काम कोई भी हो, इंसान उसके लिए वक्त निकाल लेता है, और ये तो एक बहाना है कि जी मेरे पास वक्त नहीं है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे टेलीविजन पर भी देखेंगे। मेरा अपना मीडिया है और मैं फख्र महसूस करूंगी टेलीविजन पर काम करके। हमें भी इंतजार रहेगा रीमा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने फन का जादू जगाएं। रीमा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से जहनों से गलतफहमी दूर हुई। आप हमारी मेहमान हैं स्पार्कल टू गुड की। स्पार्कल ने आपके लिए फूलों के तोहफे भेजे हैं। सिटीजन घड़ियां बनाने वालों ने आपके लिए एक खूबसूरत घड़ी भेजी है। सायरा बतूल, आप हमारी मेहमान बनती हैं ब्लैक ब्यूटी हर्बल शैम्पू बनाने वालों की। ब्लैक ब्यूटी अपना पैगाम देते हैं। बालों को इस कदर ब्यूटीफुल बनाए कि शायद आपको भी यकीन न आए। सबाहत कमर मेहमान हैं नेशनल जैम जेली की। रेहाना नाज, आप मेहमान हैं लाडो मार्का साबुन की। लाडो की बात सुन लीजिए। लाडो मार्का साबुन की तरफ से खुशखबरी। हुकूमत ने जिला टैक्स और चुंगी खत्म करने का जो इकदाम किया है, इसको सहराते हुए लाडो मार्का साबुन बनाने वालों ने लाडो मार्का साबुन के नर्ख 2 रुपए किलो कम कर दिए हैं। लाडो साबुन लाजवाब, कपड़े धोए बेहिसाब। फायजा अमजद, एग्नस जनरल एयर कंडीशनर्स और डीप फ्रीजर्स बनाने वालों की मेहमान। Agnes General Air Conditioners, Deep Freezers with world best compressors, energy efficient product. जज साहबान को पता है कि हस्बे साबिक आपने जिस मेयार के साथ फैसला देना है, क्योंकि दोनों टीमें जबरदस्त हैं। मुझे 15-17 मिनट के बाद इन्हें रोकना होगा। बहरहाल कोशिश कीजिएगा बेहतर तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो, शेर में सख्ता ना हो और अदायगी भी अच्छी हो। जज साहबान ने इन्हीं नंबरों से आपको परखना है, इन्हीं मेयार पर। जी, पहला शेर मैं दे देता हूं। वो हम ही हैं कि तेरा दर्द छुपाकर दिल में काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं।
मुक्तावरों ने हमको सिखाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। वारिस कदर शरीत के दुश्मन ही कर सके, चेहरा मगर जरूर किसी आशना का था। आशना का था। अल्लाह मेरे देश को आजाद ही रखना, ये शहर ये करिए सदा आबाद ही रखना। ये शहर ये करिए सदा आबाद ही रखना। अलिफ। अब जो हर बात पे चुप रहता है, हाय क्या शोला बयां था पहले, मेरी सोचें ही मुझे ले डूबी हैं, वरना मैं ऐसा कहाँ था पहले। मेरी सोचें मुझे ले डूबी हैं, वरना मैं ऐसा कहाँ था पहले। ये और बात तुझे पढ़ने की फुर्सत न मिले, हम तेरे शहर में अखबार बने फिरते हैं। नींद में बेचैन अक्सर रात को तू भी हुआ, नींद से बेजार तुझको क्या पता हम भी हुए। हम भी हुए। वाह। ब्लैक ब्यूटी हर्बल शैम्पू। ये उसकी तकसीम का अमल है, वो जिसको जैसे नवाज डाले, किसी के आंगन में फूल महके, किसी के दामन में खार आए। खार आए। जनरल एयर कंडीशनर। नशेमन हो न हो ये तो फलक का मशगला ठहरा, कि दो तिनके जहां पर देखना बिजली गिरा देना। कि दो तिनके जहां पर देखना बिजली गिरा देना। अलिफ। एक शिकन माथे पे देखी थी तुम्हारे हमने, फिर कभी आंख उठाकर तुम्हें देखा भी नहीं। देखा तो नहीं। नून। नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नून। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। लाडो मार का साबुन। यारो ये दौर ज़ौफ़े बसारत का दौर है, आंधी चले तो उसको हवा कह लिया करो। आंधी चले तो उसको हवा कह लिया करो। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। वाओ। वो अक्सर दिन में बच्चों को सुला देती है इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। ये आईने की साजिश थी, खता कुछ भी न थी मेरी, मेरे मुंह पर कही मेरी, तेरे मुंह पर कही तेरी। तेरी। ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, ये तेरी याद है या दिन निकलने वाला है। दिन निकलने वाला है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। एक ही शख्स था जहान में क्या। इतना मायूस न हो घर को सजाने वाले, आ भी जाते हैं कभी ख्वाब में आने वाले। आ भी जाते हैं कभी ख्वाब में आने वाले। ये एग्नस जनरल एयर कंडीशनर, लाडो मार का साबुन। ये कैसा इज़्न तकल्लुम है जिस किताब न हो, सवाल करने दिया जाए और जवाब न हो। वाह। और जवाब न हो। वाओ। वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। जिसे गुफ्तगू में कमाल था। अलिफ। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वरना आंचल भी उसी तार से बनता है कफन। कफन भी। ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। जी रेहाना नाज, फायजा अमजद। यूं तो आने भी न दी जिस्म पे हल्की सी खराश, सैकड़ों जख्म मगर रूह के अंदर निकले। वाह। सैकड़ों जख्म मगर रूह के अंदर निकले। जी सबाहत कमर, सायरा बतूल। यूं तो करते हैं सभी इश्क की रस्में पूरी, दूध की नहर निकाले कोई कोहसारों से। कोहसारों से। ये चश्मे नम है इसे खुश्क देखभाल के कर, हरी भरी कोई बस्ती ही ज़ेरे आब न हो। ज़ेरे आब न हो। वाओ। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है।
वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये मुझसा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। और जख्म आए मुझे। ये उसके प्यार की बातें वही किस्से पुराने हैं। भला कच्चे घड़े पे कौन दरिया पार करता है। हाँ, भला कच्चे घड़े पे कौन दरिया पार करता है। ये जिस्म कब का सुपुर्दे जमीन कर देता, उठाए फिरता हूँ लेकिन तेरी अमानत को। वाह, उठाए फिरता हूँ लेकिन तेरी अमानत को। वाह। वो शख्स भी जालिम है कतील अपने अमल में, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उड़ाए गर्दने कुफ्फार की तौफीक दे या रब, जनाबे हैदरे कर्रार की तलवार का सदका। जनाबे हैदरे कर्रार की तलवार का सदका। जी। आप ही का एक शेर है। हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। न जुल्मते शब में कुछ कमी है, न कोई आसार है सहर के, मगर मुसाफिर रवां दवा हैं हथेलियों पे चिराग धर के। हथेलियों पे चिराग धर के। ये ब्लैक ब्यूटी हर्बल शैम्पू, नेशनल जैम जेली। ये जो गर्द बादे हयात है कोई इसकी जद से बचा नहीं, मगर आज तक तेरी याद को मैं रखूं संभाल संभाल के। मैं रखूं संभाल संभाल के। ये क्या कि एक दौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। वाओ। वो जो सुबह सी जबी रखता है, शाम आंखों में कहीं रखता है, धूप छाओं सी तबीयत उसकी, दिल में हाँ लब पे नहीं रखता है। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। बहल सको तो चलो। वाओ। वही नहीं तो वरक किस लिए स्याह करें, सुखन तो अर्ज़े तमन्ना का एक बहाना था। सखुन तो अर्ज़े तमन्ना का एक बहाना था। अलिफ। अब कारगिल की पहाड़ी पे पिघलेगा लहू, जब बहते हुए लहू की फिर खुशबू भी आएगी। बहते हुए लहू की फिर खुशबू भी आएगी। यूं देखना उसका कि कोई और ना देखे, इनाम तो अच्छा था मगर शर्त कड़ी थी। मगर शर्त कड़ी थी। यही दिल था कि तरसता था मरासम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। ये दिल की राह पे उड़ता गुबार किसका है, वो जा चुका है तो फिर इंतजार किसका है। वो जा चुका है तो फिर इंतजार किसका है। ये कनात है, अतात है कि चाहत है फरास, हम तो राजी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। जैसा रखे। ये साल देगा खुशी या यूं ही रखेगा उदास, मुझे बताएं तो इस बाब में सितारा शनास। इस बाब में सितारा शनास। सीन। संगे गिरा है राह में हायल तो क्या हुआ, मंजिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है। मंजिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है। यादश बखैर अहदे गुज़श्ता की सोहबतें, एक दौर था अजब कि मेरे साथ तुम भी थे। तुम भी थे। लाडोमार का साबुन, एग्नेस जनरल एयर कंडीशनर। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चलो। नजर उठा के खुला आसमान देखते हैं, जो लोग उड़ नहीं सकते उड़ान देखते हैं। जो लोग उड़ नहीं सकते उड़ान देखते हैं। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तब नगी हुआ। अलिफ। अजल के कसर में या गुंबदे अबद में रहो, जहां रहो मेरी यादों के खालो खद में रहो। वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था माफ होने तक। काफ जी। कौन कहता है कि दरिया में रवानी कम है, मैं जहां डूब रहा हूं वहां पानी कम है। ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं।
न आसमां से न दुश्मन के जोर जर से हुआ, ये मोजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ। ये मोजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ। अलिफ। इल्जाम के जवाब में हमने भी फायजा उसकी ही सिमत कर दिया हर उसके तीर को। वो अपनी हर चीज कहीं रख के भूल जाता है, मुझे बस उसकी इसी बात से डर लगता है। मुझे बस उसकी इसी बात से डर लगता है। जी। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। नून। ना फरिश्ता हो ना फरिश्तों जैसा हो, मुझे तलाश है जिसकी वो मेरे जैसा हो। मुझे तलाश है जिसकी वो मेरे जैसा हो। वरना ये तंज का लहजा भी किसे मिलता है, उनका ये तर्ज सुखन ऐन इनायत जानो। ऐन इनायत जानो। वाबस्ता मेरी याद से कुछ तलखियां भी थीं, अच्छा किया कि तुमने फरामोश कर दिया। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पा का था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। झोंका हवा का था। अलिफ। अजल से रच गई है सर बुलंदी अपनी फितरत में, मुझे बस टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। अलिफ। और अब ये कहता हूँ ये जुर्म तो रवा रखता, मैं अपनी उम्र कुछ अपने लिए बचा रखता। मजीद अमजद ले आए आप। जी। अलिफ। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। ये और बात के दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था कल तक, उसे बुरा न कहो। उसे बुरा न कहो। वाओ। ब्लैक ब्यूटी हर्बल शैम्पू, नेशनल जैम एंड जेली। वही दुखड़ा है फुरकत का, वही झगड़ा है उल्फत का, तुझे ए दाग कोई और भी आता है अफसाना। तुझे ए दाग कोई और भी आता है अफसाना। हमको शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। नून। ना मैं पास उसको बुला सका, ना मैं दिल की बात सुना सका, वो हंसी हंसी में ही चल दिया कि मैं हाथ तक ना हिला सका। हाथ तक ना हिला सका। अलिफ। इसी खलिश के सबब फिर मुझे उभरना है, खुदा के वास्ते अहदे जवाल मत छीनो। छीनो। वाओ। वो खुद ही बात को पाले, वो खुद ही आगे बढ़े, तमाम उम्र इसी आरज़ू में बीत गई, शिकस्ते दिल ने रुलाया है बारहा, लेकिन मेरी अना मेरी दिल की लगी से जीत गई। ये मैं ये कुएदार ये तन्हाई दोस्तों, क्या तुम भी बन गए हो तमाशाई दोस्तों। वाओ। वो खुदा है तो जमी पर आए, हश्र का दिन तो यहाँ बरपा है। हश्र का दिन तो यहाँ बरपा है। ये एहतजाज बजा है कि तेज थी बारिश, ये मानना है कि कच्चा था अपने शहर का रंग। कच्चा था अपने शहर का रंग। गुमा न करके मुझे जुर्रते सवाल नहीं, फकत ये डर है तुझे लाजवाब कर दूंगा। फकत ये डर है तुझे लाजवाब कर दूंगा। अलिफ। अब खौफ नहीं कोई मुझे राह गुजर से, मैं दूर निकल आई हूँ पत्थर के नगर से। पत्थर के नगर से। ये कौन आज मेरी आंख के हिसार में है, मुझे लगा कि ज़मीं मेरे इख्तियार में है। मुझे लगा कि ज़मीं मेरे इख्तियार में है। यूं तेरे गम के अमी बिलवास्ता हम भी हुए, दिल दुखा तेरा तो दिल बर्दाश्ता हम भी हुए। दिल बर्दाश्ता हम भी हुए। ये कौन लोग अंधेरों की बात करते हैं, अभी तो चांद तेरी याद के ढले भी नहीं। नक्शे हैरत हो गई दुनिया सितारों की तरह, सबकी सब आंखें खुली थीं, जागता कोई न था। न कोई गम खिजां का है, न ख्वाहिश है बहारों की, हमारे साथ है अमजद किसी की याद का मौसम। मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए, बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा था। सायरा बतूल आप मेहमान हैं ब्लैक ब्यूटी हर्बल शैम्पू की, उन्होंने आपके लिए फूल और कैश तोहफे भेजे हैं। सबात कमर मेहमान हैं नेशनल जैम एंड जेली की, उन्होंने भी आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं। फायजा अमजद मेहमान बनती हैं एग्नस जर्नल एयर कंडीशनर्स और डीप फ्रीजर्स बनाने वालों की,
उनकी तरफ से तोहफे कबूल कीजिए। और रिहाना नाज मेहमान हैं लाडो मार्का साहब उनकी तरफ से भी तोहफे कबूल कीजिए। जी, दोनों टीमों का दिल इस वक्त धक धक कर रहा होगा। बहरहाल सेमीफाइनल था। फाइनल जीतने वाले के लिए 40,000 कैश है टीम के लिए, और दूसरे नंबर पर आने वालों के लिए 20,000 कैश है। ट्रॉफी एग्नेस जनरल ने भेजी है और साथ उन्होंने ये डीप फ्रीजर्स वगैरह भेजे हैं। जी, तो जनाब शहजाद अहमद शहजाद और जनाब खालिद अहमद हस्बे साबिक हस्बे रिवायत तशरीफ ले आएं और फैसले से आगाह करें। आज का फैसला मेरी और खालिद अहमद की जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला है। बहुत अच्छा मुकाबला किया है दोनों टीमों ने, लेकिन बहरहाल किसी को हारना है, किसी को जीतना है, तो इसका जो मेयार था कि क्या चीजें मद्देनजर रखनी है, वो हमने सब चीजें मद्देनजर रखी हैं। जिस टीम ने ज्यादा अच्छे शेर पड़े हैं, गलतियां भी उसी ने की हैं ज्यादा। तो हमारे ख्याल में ये पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम जो ब्लैक ब्यूटी और नेशनल की टीम है, ये आज का मुकाबला जीत गई। सबाहत कमर और सायरा बतूल, आपको आज का मुकाबला जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। और खालिद अहमद साहब रिवायत निभाते हुए दो प्यारे से शेर। खुला मुझ पर दरे इम्कान रखना, मेरे मौला मुझे हैरान रखना। हवा की तरह सहरा से गुजर जा, सफर में क्या सरो सामान रखना। वाह वाह। जनाब शहजाद अहमद शहजाद। शहर का शहर अगर आए भी समझाने को, शहर का शहर अगर आए भी समझाने को, शहर का शहर अगर आए भी समझाने को, इससे क्या फर्क पड़ेगा तेरे दीवाने को। जिंदगी भर में कोई शय तो मुकम्मल कर लें, जिंदगी भर में कोई शय तो मुकम्मल कर लें, आओ लबरेज करें सब्र के पैमाने को। जनाब शहजाद अहमद शहजाद और जनाब खालिद अहमद, आपसे अगले हफ्ते के लिए फिर गुजारिश है, आप अपना खासा कामकाज छोड़कर तशरीफ लाते हैं तो आपके लिए सिटीजन घड़ियों के तोहफे हैं, फूल हैं, ये आपके साथ जाएंगे और अगले हफ्ते फाइनल में भी आपको थोड़ा वक्त देना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। जी ख़वातीन हज़रात, ज़हनों को हाजिर कीजिए, आपके लिए फिर खूबसूरत तोहफे हैं। ये तोहफे आपके लिए भेजे हैं सुपर एशिया ने। सुपर एशिया का पैगाम। सुपर एशिया की पेशकश सुपर वॉश SA240, पाकिस्तान की पहली मुकम्मल प्लास्टिक वॉशिंग मशीन। जी सुपर एशिया के मेहमान जो भी बने, ये बताइए कि कायदे आज़म के मकबरे की बुलंदी कितने फीट है? 120। कायदे आज़म के मकबरे की बुलंदी 120 फीट है। जवाब दुरुस्त है सुपर एशिया के मेहमान। तशरीफ रखें।